Hello students, welcome to economic class. This is Arvind Kumar Pandey and this is my show economic class CBSE 11th and 12th. Children, from this board we are going to start chapter number 2, statistics for economics, collection of data. As the name suggests, children, in this chapter we are going to discuss about the collection of data. We will discuss different types of method of collecting data, primary data, secondary data, the technique. But children, before going further in the chapter, the question arises in your mind that what is the need of collection of data? What are the purpose? Why do we need to collect the data? So children, purpose is very clear. The purpose of collection of data is to show evidence and reaching a sound and clear solution of an economic problem. In the previous chapter, children, I have already told you that economics helps to solve the economic problem, right? So through the purpose of collection of data is to show evidence, reaching a sound and clear solution to an economic problem. The means is that whatever solution we are going to find out, we have some evidence on based on which we can get some conclusion, we can get some final result. Because to reach on the final result, we need some kind of evidence, some kind of fact, some kind of information, right? So the information is reliable or not reliable, it should be based on some evidence, because without evidence, information is meaningless. How will you prove? How will you prove that this is the result? So we have some evidence. On this evidence we can reach on a sound and clear solution. ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसके हम एक सॉल्यूशन में पहुंच पाते हैं विद प्रूफ. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ एंड अ साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन. सो दिस इज गिवन पर्पज. ओके, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? व्हाट इज द मीन? Why do we need to do statistical inquiry? So children, it means a search conducted, right? Inquiry is a search conducted by using statistical methods to collect quantitative information. I have already told you in the first chapter that statistics studies only the quantitative information. It discarded the study of qualitative information or qualitative aspects. So statistical inquiry means search conducted by using statistical method. Means investigator or the person who wants some investigation conduct a searching the information using statistical method. We have different kind of statistical method. So using that methods to collect quantitative information, right? We are collecting quantitative information which is in the form of number or any information which can be numerically expressed, right, is called as statistical inquiry. So this is the purpose of statistical inquiry. These are some example of how we can represent statistical inquiry. Like if you want to know the profit of companies in rupees, for example, there are 5 companies: HUL, ITC, Reliance Industries, right? You want to know the profit of these companies, so you will write in number, right? Next is income of families in rupees, because profit will also be represented using the numeric. Income of family can also be represented using numbers. Age also. So these are all information which can be represented in numbers. So this is statistical inquiry through which we can reach on a numeric fact. Next, children, what are the sources of data? Right? Sources of data means, for example, if I ask you what is the sources of energy on the earth, obviously you will say sun, right? And next, electricity, petroleum, fuel, wood. These are the sources of energy. In the similar way, what are the sources of data? So sources of data means, children, the source from where we are getting the information, right? सोर्स ऑफ डेटा का मतलब
कि वो सोर्स जहाँ से हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये है कि उस इंफॉर्मेशन का ओरिजिन कहाँ पर हो रहा है, उसका सोर्स कहाँ पर हो रहा है। अगर एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है तो ये जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन भी यही मिलेगी। सो चिल्ड्रन वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा, internal sources and external sources. First of all, we will discuss about internal sources. Children, internal sources are the sources in which the person collect the information from the organization where he is working. Self, the organization from in which he is working, or collecting the information from the self organization. ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे खुद काम करते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय के बारे में आप पता लगाते हैं कि उनकी एक्सपेंडिचर क्या है, उनकी मंथली जो इनकम कितनी है, वो हमारी कंपनी सेटिस्फाई है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल सोर्सेस, कि जब हम अपने ही सोर्स में, जो हमारे इंटरनल सोर्स है, हम वहाँ से, फॉर एग्जांपल कि एक टीचर है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट की, और जिस स्कूल में वो टीचर हैं उसी स्कूल के स्टूडेंट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो बिकॉज कि वो टीचर भी उसी स्कूल और उसी स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, स्टूडेंट भी उसी स्कूल में स्टडी करते हैं, तो टीचर के लिए इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो क्या हो गया, इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल सोर्सेज, कि जब हम खुद के ऑर्गेनाइजेशन से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम एसोसिएटेड हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो इंटरनल सोर्स हो गया। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन पता लगा रहे हैं और उसके एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा रहे हैं, तो चिल्ड्रन ये उनके लिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन अगर रिलायंस वाले एयरटेल के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो एयरटेल रिलायंस वालों के लिए एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा, वो इंटरनल सोर्स नहीं होगा। तो चलिए एक्सटर्नल सोर्स ये है कि जब हम दूसरे सोर्स से, जो सोर्स हमारे इंटरनल नहीं है, वो सारे सोर्स जो इंटरनल नहीं चलेंगे वो एक्सटर्नल हो जाएंगे, ठीक है। कि हम किसी और सोर्स से, बाहर के सोर्स से इंफॉर्मेशन ले, जैसे कि नाम ही, लेकिन इंटरनल का मतलब अपने भीतर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कि हम दूसरे स्कूल में टीचर तो हूँ डीपीएस में, ठीक है ना, और मैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय के बारे में मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो डीपीएस तो मेरे लिए इंटरनल सोर्स हो गया और केवीएस मेरे लिए एक्सटर्नल सोर्स हो गया, क्योंकि मैं केवी में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं केवी का टीचर नहीं हूँ, मैं डीपीएस का टीचर हूँ। तो चलिए इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स को भी चिल्ड्रन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले तो हमने सोर्सेज ऑफ डेटा हैं, दो हैं इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा से हमें मिलता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा से हमें मिलता है सेकेंडरी डेटा। ये दोनों अलग अलग हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। पहले चिल्ड्रन हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब चिल्ड्रन ये है कि जहां पर उसका सोर्स है, जहां पर उस इंफॉर्मेशन का ओरिजिन हुआ, जहां पर उसका जन्म हुआ, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह लूं कि अगर ये मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए को कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है, और मिस्टर ए ने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक सर्वे किया और उनको एक इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया, तो मिस्टर ए के लिए ये जो इंफॉर्मेशन होगा वो हो गया प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी चलिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब ये है कि जहां पर डेटा का प्राइमरी सोर्स से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। जो उसका प्राइमरी सोर्स है, जहां पर उस डेटा का जन्म हुआ, वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा हो गया। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है कि हम किसी और के थ्रू
किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है और उस डेटा को मैं अपने लिए यूज करने जा रहा हूँ। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा से हमें प्राइमरी डेटा मिलता है। अच्छा, प्राइमरी डेटा वो डेटा है जिसको मैंने पहली बार किसी एक पर्सन ने कलेक्ट किया है, ठीक है ना। जैसे मैं भी बता रहा था कि मिस्टर ए ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया है और उनके पास एक डेटा रखा हुआ है, तो मिस्टर ए के लिए तो वो प्राइमरी डेटा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने वो डेटा खुद कलेक्ट किया है और वहां से कलेक्ट किया है जहां पर उस डेटा का प्राइमरी सोर्स था, जहां पर वो इन्फॉर्मेशन थी वहां से। जैसे मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिस्टर ए को लेनी है तो मेरे से आए, ठीक है, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी, मेरे फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए ने मेरे से इन्फॉर्मेशन ली और उसको कलेक्ट किया। तो मेरे से पूछा क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, मेरे बारे में मेरे जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन वो मेरे से ही मिलेगी। तो मेरे से मिस्टर ए को प्राइमरी सोर्स मैं हूँ, मेरे से उनको इन्फॉर्मेशन मिला और जो इन्फॉर्मेशन मिला वो हो गया प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है कि मेरे बारे में आप मेरे फ्रेंड से पता लगाइए, मेरे फैमिली मेंबर से पता लगाइए, ठीक है, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है मेरे बारे में। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा से जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो वहां से आपको मिलेगा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। या सेकेंडरी डेटा वो डेटा भी होता है कि जैसे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो मेरे लिए तो वो प्राइमरी डेटा है, लेकिन जब मेरे इन्फॉर्मेशन को कोई और यूज करेगा, मैं अपना डेटा किसी और को दे देता हूँ, तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो गया। तो डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हिमसेल्फ इज अ प्राइमरी डेटा, but whenever this data is used by other investigator is called as a secondary data। जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है मेरे लिए प्राइमरी डेटा है, किसी और के लिए वो सेकेंडरी डेटा है। किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी डेटा है, लेकिन जब मैं उसको यूज करूंगा तो वो मेरे लिए हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। तो चलिए ये तो होगी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब हम बात करते हैं चलिए मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कुछ मेथड हैं, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले प्राइमरी डेटा की कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के बहुत सारे मेथड हैं। चलिए यहाँ पर मैंने केवल आपके लिए फर्स्ट मेथड लिखा है, अगले वीडियो में सेकेंड और थर्ड, फिर उसके अगले वीडियो में और बात करेंगे। तो चलिए यू कैन सी हियर दिस इज द फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। चलिए इसमें डायरेक्ट भी और पर्सनल भी है कि अगर मुझे मिस्टर एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो मैं मिस्टर ए से डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा, ठीक है ना। मैंने इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया फेस टू फेस और इनके बारे में मैं डेटा कलेक्ट कर लूंगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं उसके पास उसी से जाकर सारा इंफॉर्मेशन पूछता हूँ और मैं कलेक्ट करता हूँ। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कि यहाँ पर होता है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जिसको कलेक्ट करना है वो दोनों पर्सनली मिलते हैं। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट हो गया, आप इंफॉर्मेशन दोगे और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, बीच में और कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तो ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की सूटेबिलिटी का मतलब ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर यूज किया जा सकता है, कहाँ पर इसका यूज करना सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए व्हेन एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, क्योंकि चलिए इस इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि पर्सन टू पर्सन हमें कांटेक्ट करना होता है। तो अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, टाइम भी लग सकता है। तो ये बहुत बड़े एरिया के लिए ठीक नहीं है। ऐसे एरिया के लिए इन्वेस्टिगेशन ठीक है जहाँ पर एरिया ऑफ इंक्वायरी नहीं, तो एरिया बहुत बड़ा नहीं है, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर करोड़ों लोग हैं वहाँ पर चिल्ड्रन थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट इसकी जो सूटेबिलिटी चिल्ड्रन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, कि आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए जब जिसमें आपको मैथमेटिकल एक्यूरेसी की ज़्यादा जरूरत है, कि इन्फॉर्मेशन में ज़रा सा भी पॉइंट का भी फर्क आ गया तो रिजल्ट गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप का सैंपल लेना है, अब ब्लड ग्रुप क्या है, जरा सा भी गलत हो गया तो फिर आप उसको उस ग्रुप का ब्लड नहीं दे सकते, है ना। मेरा ब्लड ग्रुप जो है उसी ग्रुप का चाहिए या फिर और ऐसा चाहिए जो हमें दिया जा सके। या फिर सैंपल लेना है, जैसे अभी कोविड-19 चला तो कोविड-19 का सैंपल, इसमें तो बहुत गड़बड़ी हुई, जिसकी पॉजिटिव था निगेटिव आ गया, निगेटिव वाले का पॉजिटिव आ गया,
इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं की। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन चाहिए जहाँ पर एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। किसी ब्लड का सैंपल लेना है, ठीक है ना, कि उनको डायबिटीज है कि नहीं है, उनको मलेरिया है कि नहीं है, उनको टीबी है कि नहीं है, या उनको कोविड है कि नहीं है, तो ऐसे जगह पर ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ठीक रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स इज नेसेसरी, यानी आप ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें कि इन्फॉर्मेंट से, यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है उससे पर्सनल कांटेक्ट करना जरूरी है। अब जैसे यही मैंने इन्फॉर्मेशन बताया कि अगर आपको किसी का ब्लड का सैंपल लेना है तो पर्सनल कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसमें तो फिर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट। कोई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें सीक्रेसी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, ये सारे सीक्रेट तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इनके बारे में। तो इस तरीके का अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और या फिर किसी की मेडिकल रिपोर्ट है, जैसे किसी को एड्स हो गया है और कोविड हो गया, टीबी, इस तरीके के लोग मैंने देखा है कि इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहते हैं, है ना। डॉक्टर लोग भी अपने पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली सभी को नहीं बताते हैं, उसको सीक्रेट रखते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन की जुड़े पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ठीक रहता है। नेक्स्ट, डेटा रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डेटा के लिए आपको पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है। इन्फॉर्मेशन देने वाला और इन्फॉर्मेशन लेने वाले दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। ये इसकी सुटेबिलिटी चाहिए। अब देख लेते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, कि जब हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। फर्स्ट स्टूडेंट जो मेरिट्स है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब मैथमेटिकली करेक्ट, आपको एक रीजनेबल रेट तक सही रिजल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन जो डिस्कार्ड नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट नहीं होती है, वो ओरिजिनल रहती है। एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको ओरिजिनल मिल रही है। लेकिन उसमें क्या है कि मैं, अगर मेरे से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो अगर मैं अपने बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैं ही अपने बारे में गलत बोलूँगा स्टूडेंट, तो फिर ओरिजिनल तो डेटा है लेकिन गलत डेटा है, क्योंकि मैंने बताया तो ओरिजिनल है लेकिन वो गलत हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिलायबिलिटी, आप ऐसे डेटा पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि कलेक्ट आपने किया और मैंने आपसे कलेक्ट किया है, तो हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि जो डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, जब उस पर आप खुद रिलाई नहीं करेंगे, दूसरा और कैसे कर पाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके जो मेरिट है वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिमिलैरिटी, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसमें इन्फॉर्मेशन बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की गई है, डायरेक्ट लोगों से कॉन्टेक्ट करने वाला भी सिमिलर है, इन्फॉर्मेशन देने वाला, तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, हमारी इन्फॉर्मेशन एक जगह एक सिमिलर फॉर्म में हमें मिल जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इलास्टिक। स्टूडेंट, इलास्टिक का हमारे इकोनॉमिक्स में मतलब मोस्टली होता है चेंज एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। व्हेन सिचुएशन इज नीडेड यू कैन मेक चेंज अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन या दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इसमें चेंज किया जा सकता है। चेंज इसलिए किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल है, ठीक है, तो हम इसमें जब चाहें तब अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज करें। मुझे लगता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन हो चाहिए, मैंने मार्शल स्टेटस के बारे में नहीं पूछा है, मैंने उनके फीमेल और मेल के बारे में नहीं पूछा, तो आप वैसा पूछ सकते हैं। उसके बाद चले हैं रिलेटेड डेटा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आपको रिलेटेड डेटा भी मिल सकता है, जैसे कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अपने एक लोकेलिटी में लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करनी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो मुझे कलेक्ट करना है वो इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में कलेक्ट करना है। लेकिन जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गए तो आपको लगा कि अगर मैं इनसे ये पूछ लेता हूँ कि कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग जॉब नहीं करते हैं, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हो जाएगी। तो ये हो गया रिलेटेड डेटा। जितने भी रिलेटेड डेटा आप चाहो तो पूछ लो। आप मिस्टर ए के घर में बैठे हो, ठीक है, और मिस्टर बी के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो जिनका घर इनके बिल्कुल पड़ोस में है, ठीक है ना। देखा है कि गांव के जो प्रधान लोग होते हैं वो पूरे गांव के बारे में लगभग इंफॉर्मेशन बता देते हैं, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन चलिए इसमें मेरिट के साथ साथ कुछ डिमेरिट भी हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट डिफिकल्टी का आप देख सकते हो, फर्स्ट जो डिमेरिट है वो है डिफिकल्ट टू स्टडी वास्ट एरिया। देखो यहाँ से ये निकल कर आया है, एरिया ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, तो उसी को यहाँ पर दोबारा लिख दिया गया है डिफिकल्ट टू स्टडी वास्ट एरिया।
अगर इन्वेस्टिगेशन का एरिया चिल्ड्रन बहुत बड़ा है तो फिर हमें इसमें दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर हम इसे यूज कर तो सकते चिल्ड्रन, यूज तो देखो सब जगह हो जाता है, लेकिन डिफिकल्टी आती है यूज करने में। दूसरा देखो कॉस्टली है, ऑब्वियसली देखो पर्सन टू पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको हायर करना पड़ेगा, एम्प्लॉय लोगों को हायर करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो डिफिकल्टी भी है, कॉस्टली भी है। पर्सनल बायस है, पर्सनल बायस का मतलब ये है कि दो ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक इन्फॉर्मेशन देने वाला, एक इन्फॉर्मेशन लेने वाला। अब इन दोनों में से अगर कोई बायस हो गया, जैसे मैं मेरे बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो मैं अपने बारे में ये थोड़ी बताऊंगा कि मैं दारू पीता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैंने मर्डर किया हुआ है, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। तो जब आप मेरे से इन्फॉर्मेशन इस तरीके की पूछोगे तो मैं बायस हो जाऊंगा, क्योंकि लोग नहीं बताते अपने बारे में। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है चिल्ड्रन तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब चिल्ड्रन है कि डिफिकल्ट होता है, क्या है कि इसमें आपको हायर करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, फिर उनको पे करना पड़ेगा, फिर उनको मेथड समझाना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है चिल्ड्रन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टी आती हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कलेक्शन ऑफ डेटा का कुछ पार्ट तो समझ में आ गया होगा। तो चिल्ड्रन इसमें हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात की, कुछ और मेथड है हम अगले वीडियो में, और उसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे मिलते रहेंगे। टिल देन आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।